We never know the love of our parents for us till we have become the parents. Appreciate your parents. You never know what sacrifice they went through for you. Love your parents and treat them with loving care. You will only know their value when you see their empty chair. They may forget your name, but they will never forget how you made them feel. They didn't leave you when you were young. So do not leave them when they are old. Your parents give you many things in a lifetime, most of which you will not appreciate until the way after they are gone. Your parents showed you the world, and in return, you showed them the old age home. A very heart touching story, but it's a real bitter truth, we can say. An old man took his phone to a repair shop and he asked to the technician that there's something wrong in my mobile. But when the technician checked his mobile, he said that nothing is wrong, your mobile is okay, it's working fine. And the old man answered with tear. There was tear in his eye, and he said that then why don't my children ever call me? What's wrong with that? I just want to show all of us, I just want to show the world that see what is the time now. When we were in childhood, our parents always support us. They help us in growing. They give us good education, and they did their best for us. And in return, what we are giving nowadays, I don't think that we are on the top of the marks. To be honest, we are not doing anything for our parents. So we just have to be very positive that they have also hurt. At the time of their old age, we should respect them and we should treat them as our respectful parents. So this message is for all of us that I just need to spread the happiness around the world, and we just need to show the what is the respect of old age. Thanks. I'll show a few example. I just met today one of my older relative, and I just wanted to know that what he has achieved in the past, and due to that his children's future is bright nowadays, and he has done a lot of things for his family. At the age of 60, how is he's feeling now? So I just wanted to show you all, so we can take some example for us. Thank you. Hello and welcome once again, my all viewer. And today I'm going to introduce one personality. He's very famous and he's very popular amongst all the people in Harsinpur. And today he will just speak up about his childhood life and what the struggle he has faced in his childhood life, and what is the suggestion, what is the message he want to pass through this channel to the viewers, that what we should do in our life to become more successful person. And he has done a lot of struggle, and he will speak about his childhood, and he will just give some suggestion to us that what we have to do and what we have to achieve. So I am just welcoming Mr. Heather. I'm very welcome to you to my channel. Please have a seat. Thank you. I'm very once again I'm welcome to you to join with my channel. Most welcome. Thank you. And I just want to know for that, please introduce yourself so we will know that about your life. Hello friend, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Zulfiqar Haider from Harsinpur, Benipur, Darbhanga and Bihar. My childhood life was very tough, but now is very fine, very good. I have 5 daughters and 1 son,
माशाअल्लाह 4 लड़की की शादी हमारी हो चुकी है। एंड माई सन वाज स्टिल स्टडी इन मुंबई। और आप लोगों के दुआओं की ज़रूरत है कि मेरे बच्चे आगे बढ़ें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने बारे में बताया। और मैं शुरुआत करता हूँ अपने क्वेश्चन से। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका उम्र कितना है, एज कितना है अभी? नाउ आई एम 60 ईयर्स ओल्ड। मैं अभी 60 साल का हो गया हूँ। ओके, यू आर 60 इयर्स ओल्ड। यस। सो आई जस्ट वांट टू नो अबाउट योर अनटोल्ड स्टोरी। मतलब कि आपके मतलब जैसे आपके पीछे में आपके जो प्रीवियस लाइफ में क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पाए, आप क्या बनना चाहते थे, वो जो अनटोल्ड स्टोरी है, आई जस्ट वांट टू नो दैट एंड आई जस्ट वांट टू शो टू माय ऑल व्यूअर्स। ओके ओके। माय फादर वाज पोस्टमैन। ही वाज वेरी पुअर मैन। ही हैज नो मोर मनी। आई वांट टू बिकम डॉक्टर, लेकिन मैं पढ़ नहीं सका पैसे की मजबूरी की वजह से, इसलिए मैं डॉक्टर नहीं बन सका। और आज तक मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ ना कुछ सीखूं और सीख रहा हूं। मैं अपने देखने वाले और सुनने वालों से ये गुजारिश करूंगा कि इल्म सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इल्म किसी भी उम्र में सीखा जा सकता है और आप पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें। एजुकेशन से आपका सारा मुसीबत का हल निकल सकता है। अगर आप पढ़ेंगे तो अब आने वाले वक्त में आप लाखपति और करोड़पति भी हो सकते हैं। I really congratulate your effort that you have done a really great job. आपने काफ़ी मेहनत की है अपने चाइल्डहुड में, जिसका नतीजा ये है कि आप आज यहाँ इस मुकाम पर बैठे हुए हैं। और आपने कहाँ काम किया, किस टाइप का काम किया, एक्सपीरियंस क्या था, वो बताइए सर। या दो देख के मतलब। आई हैड बीन लिविंग इन लीबिया फॉर 40 ईयर्स। माशाअल्लाह, जिस कंपनी में मैं था उस कंपनी का नाम है J&P। गॉड ब्लेस हिम। और उन्हीं कंपनी की वजह से आज मेरे पास जो कुछ भी है उसी कंपनी की देन है और अल्लाह की मेहरबानी है। आप ये लैंड देख रहे हैं, ये लैंड मैंने खरीदा है उसी कंपनी की वजह से। दिस लैंड फॉर मी, दिस लैंड बाय फॉर माय सन, बिकॉज आई हैव ओनली सन। इस बच्चे के लिए, मैं अपने बेटे वकार बाबू के लिए मैंने ये जमीन को खरीदा है। और मेरी ये तमन्ना है कि इस जमीन को मैं अपने बाबू के हवाले करूं ताकि वो अपने भविष्य में, अपने फ्यूचर में कुछ ना कुछ कर सकें। और भी मैंने ज़मीन खरीदा है अपने बच्चों के लिए, जो यहाँ नहीं है, कुछ दूरी पर है। घर भी मैंने बनाया है छोटा सा, वो भी मैंने अपने बच्चों के लिए बनाया है, क्योंकि मेरे पास एक ही लड़का है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी किया है अपने बच्चों के लिए किया है। आप मतलब क्या उम्मीद कर रहे थे वकार से? पढ़ो तो मतलब किस तरह से पढ़ो, और जो आपने बोला कि इंग्लिश। वैसे मैं वकार को डॉक्टर बनाना चाह रहा था, लेकिन बदकिस्मती से लीबिया में ये अगर मुसीबत नहीं आती है, ISIS का जो हमला हुआ उसमें मैं वहीं था। और मनमोहन सरकार की मेहरबानी की वजह से आज मैं जिंदा हूँ, वरना मैं भी मार दिया जाता। मैं मनमोहन सरकार का धन्यवाद देता हूँ और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे 18,000 भारतीयों को मनमोहन सरकार ने सुरक्षित अपने देश में पहुंचा दिया। अगर मैं आज तक लीबिया में होता J&P कंपनी में, तो आज मैं अपने बच्चों को जरूर डॉक्टर बनाता। लेकिन चलिए, डॉक्टर नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा बच्चा पढ़ रहा है, इससे बढ़कर और खुशी की कोई बात नहीं है। हम हमेशा उसके लिए दुआ करते हैं, रात में भी दुआ करते हैं, दिन में भी दुआ करते हैं, और उसके साथ साथ हम पूरे भारतवासियों के लिए दुआ करते हैं। क्या देखिए, इंडिया के अंदर में आपने अभी इंडिया का सवाल उठाया, तो मैं ये पूछना चाहूँगा, अभी इंडिया का जो सिचुएशन है, खासकर एजुकेशन पे इंडियन गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस नहीं है, वो ध्यान नहीं दे रही है। आप देखते होंगे, अब मैं आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं जब सुबह में देखता हूँ यहाँ पे, तो खेत वगैरह में 10 साल, 6 साल, 8 साल के बच्चे लोग, जो मासूम बच्चे, जिस उम्र में उन्हें स्कूल में बैग लेके जाना चाहिए, स्कूल में पढ़ाई करना चाहिए, वो मतलब खेत में काम कर रहे हैं। तो उनका फ्यूचर कैसे उज्जवल है, भविष्य कैसे आगे देख पाएंगे? सबसे पहली बात बाबू ये है कि ये जो आप देखते हैं गांव के अंदर में, इसकी खास वजह यह है कि दे हैव नो मनी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है, यही सबसे बड़ा मुसीबत है उनके लिए। गरीब घर में वो पैदा हुआ है, 3 साल का, 4 साल का होता है, उसके माँ बाप उन्हें बकरी खरीद कर छोड़ देते हैं कि जाओ बेटा बकरी चराओ, ऐसे साल में 2 बार बच्चा होगा तो उसे आमदनी होगी। इसी वजह से उनका फ्यूचर बिल्कुल डार्क हो जाता है। सरकार को इस पर फोकस करना चाहिए, चाइल्ड लेबर पर फोकस करना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर में बच्चों से काम लिया जाता है। काम करने वालों को अरेस्ट करें, उनको पनिश करें और बच्चे को एजुकेट करें। मैं कहूँगा
कि आने वाले तकलीफ से मौजूदा तकलीफ जो है वो बेहतर है। बिल्कुल सही बोला आपने। आज की तारीख में अगर आप हम तकलीफ उठा लेते हैं, एक वक्त भूखा रह लेते हैं, तो वो हमारे लिए बेहतर है आने वाले कल के लिए। आप जब ज़ईफ होते हैं, बूढ़े होते हैं, आपके पास पैसा नहीं होता, आप कहाँ से रोटी खाएंगे? लेकिन आज जवानी में अगर आप भूखे रह लेंगे तो बुढ़ापा आपका बिल्कुल रोशन अफरोज हो जाएगा। मैं यही गुजारिश करूंगा कि एक वक्त खाइए, तकलीफ उठाना है तो जवानी में उठाइए, बुढ़ापे की तकलीफ को नहीं साथ में लेके चलिए। आप बुढ़ापे में आराम से जिंदगी गुजारने का ख्वाब देखिए, और आराम से जिंदगी तभी गुजारेंगे जब आप खुद भी पढ़ेंगे और बच्चों को ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपका काफ़ी शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और यू कनेक्ट विद माय व्यूअर। और आखिर में मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आपका बेटा वकार मुंबई में और एजुकेशन हासिल कर रहा है, और वो मतलब साथ में जॉब भी कर रहा है और फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है आपको। आप वकार को पर्सनल क्या मैसेज देना चाहिए? आप मुझे सुनने में आया था कि यू जस्ट वांट टू वकार टू गेट मैरिज। आप उसको किस जरिए, किसी अंदाज में बताना चाहेंगे जो मतलब मैं यही शेर के हिसाब से कुछ मैं आपने वकार शेर में को लिखा था। मैं वकार को मैरिज के बारे में एक शेर पढ़ के सुनाया हूँ, लिखा हूँ मैसेज। आपने लिखा है, मैंने लिखा है, स्क्रिप्ट आपने लिखा पूरा डायरेक्ट? पूरा स्क्रिप्ट मैंने लिखा है। और मैं बाप हूँ, मैं डायरेक्ट उससे ये नहीं कह सकता कि बेटा तुम शादी कर लो, है कि दुल्हन मैं वकार बाबू से शादी के बारे में डायरेक्टली तो नहीं कहा हूँ, लेकिन खुद का लिखा हुआ एक शेर के ज़रिए मैंने उनको इशारा दिया है कि आपका शादी का एज जा रहा है, लिहाजा आप शादी कर लें। उस शेर को मैंने किस तरह अपने बेटे को शेयर किया है वो आप सुन लीजिए। मैंने अपने बच्चों से ये कहा है पर्दा में कि दुल्हन आती खुशियाँ लाती, दुल्हन आती खुशियाँ लाती, अपने ही किस्मत का खाती, पोता पोती साथ नहीं है, कुछ भी मेरे हाथ नहीं है। ये इशारा अगर समझदार लड़का होगा तो जरूर है इस बूढ़े बाप के ख्वाब को जरूर पूरा करेगा इंशाल्लाह। Very thankful to you that you given us your precious time and you discuss about life, future, goals and education. That's really I really congratulate you for that. I'm very thankful to you. और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आज वकार जिस मुकाम पर भी है वो मेरी वजह से नहीं है, मैंने सिर्फ पैदा किया है, अल्लाह ने जिंदगी दी है, लेकिन उसकी काबिलियत में, उसके हुनर में जो हाथ है वो एक हाथ है एहसान का और दूसरा हाथ है सिबगतुल्लाह का, जो हमारे बड़े शाहरुख के साहबजादे हैं। मैं इन दोनों भाइयों के लिए भी दुआ करता हूँ।